ओके या 21st स्टार्टिंग भी हम लोग आज 20 सम 15-20 सम और करेंगे एंड देन ठीक है। चलो इधर देखो, टुडे वी आर गोइंग टू डू the chapter which is based on rotational motion and gravitation, more or less rotation, gravitation and elasticity, and if time is there then we'll do fluids also. ठीक है ना? हेलो, ठीक है। सो जितने भी जनवरी 2020 में क्वेश्चंस आए हैं उसी के बेसिस पर है। चलो इधर देखो, as shown in the figure, a bob of mass m is tied to a massless string whose end is portion is wound on a flywheel that is a disc of radius r and mass m. When the acceleration, when it is released from rest vertically, when it has covered a distance h, the angular speed of the wheel. Okay. अच्छा इधर देखो, हेलो, are you all there ना? Yes, sir. Yes sir, yes sir. अच्छा, you know work energy theorem, मैं हमेशा यही फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट सर? फाइनल काइनेटिक एनर्जी. कैन आई से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0? हेलो, work done. He is telling you that the bob is going down by a height of h. So he comes down by a height of h. Can anyone tell me how much is the work done by gravity? Choto mgh. Hello, hello yaar, bolo. Yes, sir. And when he comes down, he acquires a velocity v, and this also acquires a velocity omega. So final kinetic energy will comprise of half choto mv square of the bob plus half I omega square of the pulley. हेलो, Yes, sir. यार तुम लोग बोलते ही नहीं हो, सिंपल है. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. वो तो गया आंसर mgh. अच्छा m उड़ा है दो ना? नहीं m उड़ेगा नहीं, Time उड़ेगा. m उड़ जाएगा बाद में, वो देखते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इसका? कौन सी चीज है भैया? अरे बोलो यार. डिस्क डिस्क है तो हाफ mr स्क्वायर आ जाएगा Yes, sir. इनटू ओमेगा स्क्वायर. ओके, यस और नो? Yes sir, yes sir. M will get cancelled. m उड़ जाएगा, यहाँ पर ये हो गया gh हाफ v स्क्वायर प्लस 1/4 r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. हेलो, Yes Yes, sir, sir. yes sir. but you know this v, can I say this v is connected to the tangent of the circle, so this v will be resulting in r omega. Yes, sir. Yes Yes, sir. Yes, sir, sir. yes So sir. whatever v he is acquiring, it is like a firki na. Yes, sir. Yes sir, yes sir. तो v will become equal to r omega. So ये हो जाएगा बेटा हाफ r square omega square प्लस 1/4 r square omega square. डन ना? तो यार ये तो हो गया, ये 1 + 1/4 कितना होता है? 3/4 होता है क्या? 3/4. Yes, sir. r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सही है क्या? तो ओमेगा Yes, sir. स्क्वायर यहाँ से आपको मिल जाएगा 4/3 gh बाय r स्क्वायर. और ये R. रूट निकाल लो तो आंसर आपको दिखाई देगा. क्या आंसर है? सी आंसर है. ठीक है ना? हेलो, देखो ना यार, Yes, sir. Yes, Yes, sir. ये इजी वाला सम है. रोटेशनल खाली दिखता टफ है, बट जितने सम हमने डीसी पांडे से किया है उसी के बेसिस पर ये सम हमको मिल जाएगा. आर योर अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes sir, yes sir. तो कुछ भी नहीं है इसमें. रोटेशनल मोशन. आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं बेटा. The radius of gyration of a uniform rod is length L about an axis passing through 1/4. Okay, पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं जरा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया about the center of the rod is ml square by 12 ml square by 2. and passing at a point 1/4 from the center, L by 4 from the center. Can I say ये I naught है, ये मेरा IC है, और ये कितना डिस्टेंस है बच्चा? L by 4. L by 4. ट्रांसफर एक्सेस थ्योरम मालूम है ना? I naught is equal to IC plus mass into distance square. हेलो, Yes, sir. Yes sir. ml square by 12 plus mass into distance is L by 4 का स्क्वायर will become L square by L square 16. by 16. और आपको मालूम है ये आंसर 7 ml square by 48 है. हजारों टाइम हम लोग कर चुके हैं, बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और इस आंसर को हम लोग m k स्क्वायर से इक्वेट कर सकते हैं बिकॉज रेडियस ऑफ गायरेशन मांग रहे हैं. हेलो,
Yes, Yes, sir. sir. So K is equal to root of 7 by 48 times of L. I hope everyone is understanding. Hello. Yes, sir. ये भी easy है. Okay. थोड़ा सी कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि क्रैक इजी है यार, इतना कुछ टफ नहीं है. ओके, जो लोग बिट्स के लिए एस्पायर करते हैं, बिट्स का पेपर इससे भी इजी आता है फिजिक्स के लिए. ओके, मगर उसमें एक्स्ट्रा भी बहुत सारी चीजें होती है, वो हमको थोड़ा देखना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 24 पे आता है. मास पर यूनिट एरिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क डिपेंड्स ऑन. मास पर यूनिट एरिया मतलब सिग्मा की बात हो रही है. सिग्मा डिपेंड्स ऑन ए प्लस बी आर, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. इफ यू सी, ये दिया हुआ है, देखो. हेलो. ओके, मतलब इंटीग्रेशन वाला सम है, समझ जाना है. हेलो. अरे भाई, क्या Yes, हो रहा sir. है? Yes, sir. Yes, Moment sir. of inertia of a disk about an axis perpendicular to the plane and passing through the center. मतलब कह रहा है एक डिस्क है जो जिसका मास यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है. हेलो. अरे भाई, ये मास पर यूनिट एरिया दिया हुआ है, Non-uniform, na, नॉन sir? यूनिफॉर्म है. हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ मैं, वही तो पूछ रहा हूँ. हमको क्या मांग रहा है वो? आईसी. ओके, बट इसका रिलेशन क्या रहेगा बेटा? क्या करना पड़ेगा? ये तो पूरा डिस्क है, सही है. Integrate. सबसे पहले क्या करने का? सेंटर से गो टू एक्स, Take a small Take DX. element. DX. टेक अ DX. स्मॉल रिंग dx. हेलो. Yes, sir. इसका थिकनेस dx रहेगा और इसका मास रहेगा dm, which will be mass per unit area into its area. Yes, हेलो sir. भैया, बोलो. अरे हजारों टाइम कर चुके हैं भाई. हेलो. Yes, sir. yes or no? Yeah. Can anyone tell me what is sigma? Sigma is given over there, a plus br. And can anyone tell me what will be the area of the element? Length into breadth ना. अगर इस रिंग को हम लोग खोल देंगे, ऐसे इसको सीधा कर देंगे, तो बेटा इसका लेंथ कितना हो जाएगा? Oh, yeah, na, 2 sir. pi r, Pi the x. circumference एक of काम the. करो, हाँ, 2 पाई x लिखना है या गो टू x, या मैं कर सकता हूँ गो टू x एंड टेक dx ना. इसका थिकनेस कितना रहेगा बेटा? DX. 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 तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 2 pi x into dx. 2 पाई x dx बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो व्हाट विल बी dm इक्वल टू a प्लस b x इंटू 2 पाई x dx. यस और नो? अरे r नहीं है वो, Yes, sir. Yes, एक्चुअली sir. x है ना, Yes, ये sir. समझ Yes. गया रहेगा आपको. हेलो. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मैंने यहाँ पर वेरिएबल x पकड़ा है, आपको समझ में आ रहा है क्या? हेलो. Yes, Yes, sir. Sir, yes, dm sir. will become equal to, भैया कितना हो गया यार ये? ax प्लस bx स्क्वायर 2 पाई dx ना. हेलो. Yes, sir. अच्छा, दिस इज द मास ऑफ होम, द एलिमेंटल रिंग. इट इज एन एलिमेंटल, Ring. एन एलिमेंटल रिंग. ये एलिमेंटल रिंग है जिसका मास है dm और इसका रेडियस कितना है? X. x. Can I find moment of inertia of him about the center? Can I call this as di? हेलो, छोटो वाला. अरे मेथड सबको मालूम है यार. di will become dm into x square. हेलो. Yes, sir. Yes, But sir. can I say if I Yes. want to find for a disk, the disk comprises of छोटो rings Yes, sir. ranging Yes, sir. from 0 to radius. Yes, yes, sir. 0 to radius. How much is the radius given? नहीं, radius is given as a. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. बोलो भैया. यार ये वही है डीसी पांडे, ऐसे लग रहा है वही कर रहे हैं हम लोग. ये क्या हो गया? ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू 2 पाई dx इंटेग्रेशन फ्रॉम 0 टू a 0 टू i. बोलो. Yes, sir. और ये करने आता है ना. हेलो. Yes, sir. क्या हो जाएगा यार, जल्दी बोलो यार. ये क्या हो गया? 2 पाई a एक्स स्क्वायर बाई 2 मतलब a स्क्वायर बाई 2. हेलो. Yes, sir. ये कुछ गलती फलती तो नहीं कर दी ना भाई? हेलो. No, sir. No, sir. ओके, दूसरा वाला क्या है? Plus B Plus A b cube by cube by 3. 3. a क्यूब बाई 3.
कुछ गलती हो रही है मेरे को, इधर तो 5 दिख रहा है आंसर के अंदर। हेलो, सही है ना? Sir, हाँ भाई। so I think you have forgot to take x square. एक्स स्क्वायर आई फॉरगॉट। हाँ, अरे वही तो कह रहा हूँ, देखो यार, ये भूल गया ना यार। ये हेलो, Yes, sir. ये क्या हो जाएगा, ये सब मिट जाएगा ना भाई। चलो अभी इंटीग्रेट करो, सीधा हो जाएगा, ठीक है, ये सही है। ओके, दिव्या हैज टोल्ड मी करेक्ट। अभी तो आवाज तो पहचान लिया भाई मैंने। है ये कितना हो गया, ए एक्स क्यूब हो गया ना बेटा। हेलो, Yes, sir. प्लस बी एक्स 4 2 पाई डी एक्स। अब इंटीग्रेट करने आता है क्या? Yes, sir. अब आ जाएगा, देखो ना, ए 4/4 प्लस बी ए 5/5 इंटू 2 पाई। बोलो भैया। हेलो, Yes, sir. तो ये वाला जो सम है वो आंसर ए में चला जाएगा। हाँ भाई, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गॉट इट ना? सो दिस इज हाउ यू डू इट, वी हैव डन इट बिफोर। डीसी पांडे में ऐसे बहुत सारे सम्स आपको मिल जाएंगे। गेटिंग इट और नॉट? So there was one sum like that, like the disc was moving, was rotating, and a drop of wax was coming from up. So then how do हाँ you भाई, do that sum? Is it the same way? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। फेमस सम है यार, क्या बात कर रहे हो? हेलो, Yes, sir. पर्सनली मैसेज करके पूछ लेना, ये तो बोर्ड का सम था राजवीर। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। नहीं, Yes, sir. ठीक है, वो question ही आता है इसलिए। हाँ। ओके ठीक है। सो दिस इज नॉट दैट सम, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ Yes, सम, sir. दिस Yes, इज sir. डिफरेंट काइंड। चलो बाबा, 25 पे आता है। ये जो सम है वो टॉपलिंग का सम है, टॉपलिंग का। हेलो, टॉपलिंग का कंडीशन हमने डीसी पांडे में किया है, याद है ना आप लोग को? हेलो, Yes, कंसिडर अ यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए, तो उसका साइड ए है, ऑन अ रफ फ्लोर दैट इज मूव्ड बाय अप्लाइंग अ मिनिमम फोर्स एफ। मिनिमम फोर्स एफ दिख रहा है आप लोग को? हेलो, फोर्स दिख रहा है एफ yes, sir. at a Yes, sir. point B Yes, sir. below the center of mass, point B below the center of mass, point B below the center of mass. If the coefficient of friction is mu is 0.04, 0.4, the minimum possible value of B by A for the box not to topple. अच्छा, टॉपल करने के लिए क्या होना चाहिए? कैन आई से टॉपल ये पॉइंट पर होगा? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अरे भैया बोलो ना। और जब Yes, कोई sir. चीज टॉपल होती है, मैंने आपसे कहा था नॉर्मल रिएक्शन खिसक के इधर आ जाता है, याद है आपको? एट द वर्ज ऑफ टॉपलिंग। अरे Yes, भाई, sir. कॉन्सेप्ट ही याद नहीं रहेगी तो कैसे बात करूं यार मैं? बोलो हेलो। Yes, sir. यस और Yes, sir. अच्छा, फ्रिक्शन कहां पर एक्ट करेगा? पीछे के सरफेस पे, इधर, बराबर क्या? तो Yes. फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा? म्यू एन, Yeah. दैट इज म्यू एन, बट एन इज mg। MG. म्यू कितना है? 0.4 mg, बराबर। अच्छा, Yes, sir. mg कहाँ एक्ट करेगा? सेंटर से एक्ट करेगा, बराबर है? Down. Yes, sir. हाँ, बराबर है। तो ये कह रहा है कि बॉक्स जो है वो खिसक रहा नहीं है, बॉक्स जो है वो टॉपल हो रहा है। हेलो, Yes, sir. बॉक्स इज नॉट स्लाइडिंग but it is Totally. Top it like is on the it is on the verge of Well, toppling. हाँ, वेरी गुड, वर्ज ऑफ टॉपलिंग। समझ में आ रहा है क्या? yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर नॉट स्लाइडिंग है, इसका मतलब आगे का फोर्स और पीछे का फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अरे भाई, ऑटो एडजस्टिंग है ना ये तो Yes, sir. एफ का वैल्यू भी कितना होना चाहिए? बोलो, 0.4 mg. 0.4 mg या उससे कम, तो Yes, ऑटो sir. एडजस्ट कर लेगा। हेलो Yes, sir. यार, क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हम लोग को? गेटिंग इट और नॉट? Yes, यस और नो? sir. कैन आई से दिस इज एफ एस मैक्सिमम ना? और अगर ब्लॉक टॉपल नहीं कर रहा है, मतलब ये मिनिमम तो 0.4 mg होना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो खिसक ही जाएगा सीधा, वो तो सीधा स्लाइड कर जाएगा टॉपलिंग के पहले। हेलो, Yes, sir. अच्छा अच्छा, अभी टॉपल करने के लिए कैन आई से इस पॉइंट के अक्रॉस में मोमेंट्स लेता हूं। कैन आई से इफ आई कंसिडर दिस मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट, कैन आई से ये जो फोर्स है इसका मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट ऐसे रहेगा। हेलो, Yes, sir. एंड नॉर्मल रिएक्शन का तो मोमेंट जीरो हो जाएगा बिकॉज दैट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ओके, Yes, sir. बोलो। एंड फ्रिक्शन का भी मोमेंट जीरो हो जाएगा बिकॉज इट इज एट द बेस ओनली, दिस इज पॉइंट इज एट द बेस ओनली ना बाबा। हेलो, Yes, sir. mg का मोमेंट क्या रहेगा? इस पॉइंट के अक्रॉस इतना रहेगा, Yes, sir. और mg ये आ रहा है, तो mg का मोमेंट ऐसे रहेगा। सही है क्या? हेलो,
Yes. हेलो, तो कैन आई से F into B plus A/2? A/2 ये है, हाँ, ये बीच में है, ये सेंटर तक है ना लाइन, ये B, और ये कितना हुआ, A/2 हुआ ना, क्योंकि साइड तो A है। हेलो, F into A/2 कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। should become what? Okay, should become minimum equal to mg into A/2. Yes. हेलो, force into perpendicular distance, yes or no? Yes, or sir. no? हो गया, but what is F equal to? 0.4 mg. B plus A/2 will become mg into A/2. mg उड़ा दो, 0.4 into B plus A/2 will become क्या भाई, A/2 सही है क्या? Yes, sir. अब इसका वैल्यू निकाल लो, क्या प्रॉब्लम है यार, ये हो जाएगा 0.4 B प्लस 0.4 A/2 इज इक्वल टू A/2। तो A/2 इधर आ गया, ये 0.4 B हो गया, और ये हो गया A/2 माइनस 0.4 A/2। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या बात? 0.4 B A/2 कॉमन निकालो, कैन आई से इट इज 1 माइनस 0.4, तो 0.4 B विल बिकम इक्वल टू कितना होता है, 1 माइनस 0.4 ना, दैट इज 0.6 A/2। हेलो यार, बोलते नहीं हो तुम लोग। हेलो, sir, yes, sir. 0.8 B इज इक्वल टू 0.6 A, ये कुछ मिला क्या? तो व्हाट Yes, इज B sir. बाय A? व्हाट इज B बाय A? 3/4, 3/4, and we have to multiply by 100. 100। तो ओके, 75 वैल्यू आएगा। हाँ, B बाय A आपको 3/4 मिल गया, गेटिंग है ना? Yes, ये sir. Yes, कितना sir, हो yes, जाएगा, sir. 75 वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है क्या? हेलो Yes, sir, yes, sir. यार, आपको समझा गया? नहीं आता है तो टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट जाके रिवाइज करो फिर से। हेलो Yes, हेलो sir. यार, ये सिंपल बात है, ठीक है। तो वी हैव डन 26 पर आता है अगेन रोटेशन मोशन से बहुत सारे सम्स आ चुके हैं, ग्रेविटेशन से भी ये साल बहुत सारे सम्स आ चुके हैं, तो प्लीज ये दोनों चैप्टर को जाके रिवाइज करिए। 26 क्वेश्चन पे अटेंशन। कंसिडर अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 4 and length L pivoted above the center. So there is a rod of length L and it is pivoted above the center. The mass M is moving at the velocity making an angle of 45 degree to the rod long axis collides with one end. यहाँ से एक मास है, कितना डिग्री बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, 45 डिग्री, और 45 आके सीधा इधर कड़क करके उसने हिट किया, बराबर है क्या? Yes, sir. ओके, अच्छा, एंड स्टिक्स टू इट, एंड Sticks क्या to भाई? it. Sticks to it. Inelastic collision. स्टिक्स टू इट मतलब इधर आके चिपक गया तो ये दोनों साथ में घूमने लगे ना Yes, बेटा, sir. ओमेगा से। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा ये ओमेगा कितना है, वही समय जो राजवीर अभी पूछ रहा था, कहना इसे इनिशियल कंडीशन में कौन चल रहा है? The Oh. rod. पार्टिकल। Mass M is Particle. changing. पार्टिकल, तो पार्टिकल का Oh, एंगुलर मोमेंटम होता है okay. mvr। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. mvr Yes, sir. परपेंडिकुलर, mvr परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बराबर है, बिकॉज वी आर टेकिंग मोमेंट्स अबाउट दिस पॉइंट, वी आर कंसीडरिंग दिस पॉइंट, बराबर है क्या? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो m तो m है, v तो v है, r परपेंडिकुलर कितना रहेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से बेटा? हेलो, गेटिंग इट? ये देखो, ये L/2 ना, L/2 ना sir. Yes, बट sir. v शुड आल्सो बी जिसमें ना दोनों, ये हो जाना चाहिए v/√2, We बिकॉज v और r दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए ना एक दूसरे से। हेलो, Yes, दे sir. शुड बी Yes, व्हाट sir. यार, Yes, sir. परपेंडिकुलर टू ईच अदर। there on the angle. v को अगर मैं v/√2 लिखूंगा तो ही तो r को L/2 लिख सकता हूं मैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. हेलो, Yes, sir. गेटिंग इट और नॉट? हाँ, वो Yes, sir. कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये इनिशियल है, क्योंकि रॉड तो स्टार्ट में घूम रहा नहीं है। फाइनली क्या हुआ, दोनों एक दूसरे पे चिपक गए एंड दोनों घूमने लगे, तो अभी एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई ओमेगा। हेलो, yes, sir. आई ओमेगा, आई क्या रहेगा, आई रॉड का खुद का ml²/12 प्लस प्लस ये जो चिपक Particle. चुका है इधर विल बिकम मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। Yes,
and distance is L by 2, तो ये हो जाएगा L square by 4. Do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, but the masses of both are different. Different है, same है, क्या है यार? So the rod is The 4m mass. and that one is m. हाँ, तो Yes, छोटो sir. m है, बड़ो m लिख लेते हैं पहले. हेलो, Yes, चलेगा sir. Yes, ना? sir. कैसे लिख लेंगे? और ये छोटा m ही है, क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसको छोटा m लिख लेता हूँ. But I know that net external torque acting on the system is what, sir? 0. तो यार कितना पढ़ाने का यार, मुझको तो समझ में नहीं आ रहा है. बोलो ना, m v by root 2 into L by 2 is equal to बड़ो m L square by 12 plus छोटो m L square by 4 into ओमेगा फाइनल. यार ढूंढ सकते हो क्या ओमेगा फाइनल? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. बोलो, ढूंढ तो सकते हैं. अभी क्या है यार प्रॉब्लम? Yes, sir. छोटा m भी दिया है, बड़ा m भी दिया है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर आपको मिल जाएगा. दिस आंसर विल कम एज b. हेलो, Yes, sir. तो एक भी सम कोई बोल नहीं सकता कि बाहर का सम है, बाहर का कॉन्सेप्ट है. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हर Like एक the सम same हमने only. किया है, सेम किया है, और ये जेई मेन में लेवल 1 में ही किया है ऐसे टाइप का. हेलो, Yeah, yeah. तो Sir. ऐसे नहीं है कि जेई एडवांस के सम्स है या कुछ है, कुछ भी नहीं है, सेम है. आपको सिर्फ बराबर से डीसी पांडे को पढ़ना है, बराबर से रिवाइज करना है, हर एक टाइप बराबर से प्रैक्टिस करनी है. ओके, इंट्रोडक्टरी में ही मिल जाएगी कितना सम्स तो ये टाइप. ओके, फिर मैंने प्लान किया कि जो लोग सीईटी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट, वील कीप अ सीईटी का सीरीज आल्सो 2020 का. समझ में आ रहा है क्या? पहले इस पे पूरा जान लगा के मेहनत करो, फिर हम लोग सीईटी का भी सीरीज रखेंगे. बिट साइड का भी अगर आपको पेपर्स चाहिए तो बिट साइड के पेपर्स आल्सो वी कैन अरेंज. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. 27th पर आता है. तो ये तो क्या समय है, मुझे तो पूछ के लिए लिया क्या मालूम. यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास एंड रोल्स. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग का फार्मूला? हाफ mv स्क्वायर 1 plus k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. हेलो, डू यू रिमेंबर और नॉट? ये भी नहीं आता है. हेलो 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 हेलो, Yes. यस ऑन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाफ m is 500 ग्राम. ये v स्क्वायर, v is 5 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 into 10 is to minus 10 2 is the to whole minus square. 2. 1 plus k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कितना? यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, मतलब ये 2/5 आ जाएगा. अरे कोएफिशिएंट होता है ना बच्चा. हेलो, Yes. Yes, sir. में आंसर खत्म. ओके, हेलो, Yes, sir. Yes, sir. yes or no sir, getting it or not? भाई बोलो. Yes, sir. हाँ भाई, ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन इन केस ऑफ रोलिंग. अच्छा, मैंने एक चीज नोट की यहाँ पर, आपने एक चीज नोट की कि एक एक सम जो आया है सब अलग टाइप का आया है. मतलब ऐसे नहीं है कि एक जगह देखो, एक जगह एंगुलर मोमेंटम पूछा, दूसरी जगह रोलिंग पूछा, तीसरी जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा. हेलो, आर यू एनालाइजिंग? Yes, sir. मतलब ऐसे नहीं हो सकता है कि जैन के इवनिंग में जो आया 8 जैन के मॉर्निंग में वही सम आ गया. ऐसा नहीं है. दे आर प्लेइंग विद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स. आपको कुछ समझ में आ रहा है? स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. अभी जितना रोटेशन मोशन हमने किया, सब क्वेश्चन सब टाइप्स वो लोग कवर कर रहे हैं. ओके, टाइप्स रिपीट नहीं कर रहे वो लोग. एंड ये एनटीए बॉडी का दिमाग हमको समझना है, क्योंकि दिस बॉडी विल सेट अप द पेपर. ओके, चलो इधर आ जाओ. ये क्या कह रहा है? 3 solid sphere each of mass m and diameter d are stuck to one another such that the lines connecting the centers form an equilateral triangle. भाई सही है ना? दिख रहा है Yes, आपको? sir. Solid spheres है. The ratio of I naught क्या रहेगा? I naught क्या है भाई? Moment of inertia of system about axis passing through centroid. ये वाला. हाँ, आयो is the moment of inertia about the centroid. And तीसरा वाला, दूसरा वाला कौन सा है? Passing through any one voltage. I is हाँ, and center of any other sphere I and perpendicular to the plane. And perpendicular. I मतलब moment of inertia passing through A, मतलब इधर. हेलो, Yes, sir. अब मैं आपसे एक बात बोलूं. ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अगर आपको आती रहेगी तो बहुत मजा आ जाएगा यार. हेलो, ये अगर ये चीज होती है, आपको मालूम है ये जो हाइट होती है उसका फॉर्मूला इज √3/2 ऑफ साइड. हेलो, Yes, इतना sir. तो आता है कि इतना भी क्या करते हैं तुम लोग हैं? हेलो, Yes, sir. और जो सेंट्रॉइड लोकेटेड होता है वो इधर से 1/3 डिस्टेंस पर होता है
Yes, और इधर sir. से 2/3 2/3 डिस्टेंस पर हो गया। 2/3 distance. Yes, sir. हेलो Yes, sir. Yes, sir. यार मजा आएगा कि नहीं? अभी मुझे आप एक बात बताओ कि साइड का वैल्यू कितना दिया है? D. डायमीटर डी दिया है। नहीं नहीं नहीं, तो ये 2D होगा साइड। Yes, sir. भाई नहीं नहीं, डायमीटर डी है ना? नहीं, हाँ तो Sir, D होगा। D yeah. हो- Meter is D, so side So also side D. is only D only. सॉरी आई थॉट रेडियस, सॉरी। तो ये हाइट कितना हो जाएगा यार? √3/2D. 3/2D. तो ये वर्टेक्स से कितना डिस्टेंस होगा सेंट्रॉइड? 2/3. 2/3, मतलब ये जो पॉइंट होगा यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा 2/3 2/3 of टाइम्स √3/2D. √3/2D, मतलब ये 2 तो उड़ गया, तो ये हो जाएगा D/√3। Yes, sir. मजा आने वाले। देखो, कैन आई से दिस इज D/√3? हेलो, अब Yes, इसमें sir. भाई Yes, sir, फिजिक्स yes, का sir. कोई लेना देना नहीं है इसमें, आपको पता है। अच्छा, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पॉइंट अबाउट ए? अरे भाई क्या 2/5 mr², सेंटर है ना वो, प्लस ट्रांसफर कर दूं इधर में एक के लिए, Transfer, और yes, 3 sir. मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि 3 स्फीयर्स है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ भी दम नहीं था भाई। 2/5 mr² प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ 1 Dis- बराबर इनटू Yes, 3। sir. हेलो Yes. हेलो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तो मिल गया। आयो जो भी आएगा देखना यार कितना आ जाएगा। 2/5 mr², आर इज D/2 ना, तो D लिया है ना उधर, आंसर D के टर्म्स में है ना। हेलो, Yes, sir. तो D²/4 हो जाएगा ना ये। हेलो, ये हो जाएगा md² Yes, sir. बाय 3 इंटू 3। कितना होता है देखो जरा ये, ठीक है। 2 2 4, 5 2 10 ना, 13 md²/10. कितना आएगा टोटल मिला के? 13 mb²/10। 10. ये आयो मिल गया, बराबर है। Yes, sir. Yes, sir. अब कुछ नहीं है, अभी एकदम आसान है। तो आयो तो मुझे मालूम है, मुझे पता है I do. आई ए ढूंढना है। अच्छा, जब आपको आई ए पता करना रहेगा, कैन आई से आयो को अभी आई ए पे ट्रांसफर मारता हूं मैं। Yes, sir. हेलो, कैन आई से आई ए विल बी I0 प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. आईओ आई ए दैट इज IO। या तो एक काम करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं ना। मेरी बात सुनो, मजा आएगा। देखो, या तो आप तीनों का भी कर सकते हो, तीनों का कैलकुलेट कर सकते हो। देखो अलग अलग, मैं दूसरे मेथड से बताता हूँ, इजी मेथड से, मतलब थोड़ा लंबा मेथड है बट आ जाएगा आपको। कैन आई से इसका खुद का क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/5 mr². इसका खुद का कितना रहेगा? 2/5 mr². प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ट्रांसफर करना है Mass इधर। into this. Yes, sir. हेलो, Yeah, sir. प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस इज d ओनली ना। हेलो, और Yes, sir. इसको भी ट्रांसफर इधर करना है कि नहीं करना है? हेलो, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ? 2/5 mr² plus md². अब ये तीनों को जोड़ दो। हेलो, Yes, sir. तो क्या मिल जाएगा आपको? आई मिल जाएगा, दैट विल बिकम 2/5 2/5 2/5, दैट इज 6/5 mr² प्लस 2md² square. ये Yes, कितना sir. होता है? आर को D/2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6/5 m, आर इज D²/4 हो गया। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. प्लस 2md², इसका वैल्यू निकालो। इसका वैल्यू आपको आएगा 23/10 Yes, sir. md², और दोनों को डिवाइड मार दो ना, दिस इज IA ना। हेलो, Yes, 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 sir. 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 Yes, Yes, sir. sir. IO, दोनों को डिवाइड, ये कोई हार्ड नहीं है सम। हेलो, Yes. गेटिंग है ना? हाँ। खाली ये थोड़ा ये प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए था, ये प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए था, वरना लफड़ा हो जाता। ठीक है ना? हेलो हेलो यार बोलो, Yes, sir. गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो इससे आगे Option A बढ़ते आ हैं। रहा है sir. ऑप्शन ए आ रहा है ना? हाँ, ऑप्शन ए आ जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, 29th पर आते हैं। 29th इज अ गुड सम, नाइस सम, इजी सम। ओके भाई, उससे डरना मत कि हार्ड सम है। हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है यार। हेलो, और इजी है तो सबके लिए इजी है। हार्ड सम को अगर आपने सॉल्व कर लिया ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इजी सम तो कोई भी सॉल्व कर लेगा।
हेलो, आई ऑल गेटिंग इट? हेलो, चलो Yes, sir. 29 सम पे आता है। रोटेशन मोशन के अच्छे खासे सम्स पूछा था, मतलब एवरी ईयर आई थिंक सो 2 क्वेश्चंस आर देयर। क्या मालूम। अब ये क्या बोल रहा है कि वन एंड ऑफ द स्ट्रेट यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज पिवटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल लेवल। ये पिवट का पॉइंट है, ठीक है, हिंज लगा दिया है। It is released from rest when it makes an angle of 30 degree with the horizontal. Can I say when it is at 30 degree, this distance will become L sin theta? हेलो, क्या बोल रहा हूँ Yes, मैं? sir. अरे भाई ये L है तो ये L sin theta हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. और कह रहा है जब वो नीचे आएगा, जब वो नीचे जमीन पे आके गिरेगा ऐसे, तो उसका एट दैट मोमेंट क्या मांगता है मेरे को? मेरे को एंगुलर स्पीड चाहिए, मतलब इस मोमेंट पे उसका एंगुलर स्पीड चाहिए। कैन आई से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? हेलो, Yes, sir. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, वर्क डन क्या रहेगा? mgh, MGH. और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना, mv स्क्वायर नहीं करना भाई, ये घूम Yes, sir. रहा है। Yes, sir. इट इज घूम ओनली रहा है. हैविंग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, विल बिकम Yes. mgh। h कितना है? l sin 30 बराबर क्या? Yes, Yes, sir. sir. हाफ i is ml स्क्वायर बाई 3 अबाउट वन एंड। हेलो यार, बोलो Yes, sir. Yes, Yes, ओमेगा, sir. Yes, यहाँ sir. से Yes, sir. ओमेगा मिल गया, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। हेलो, ये Yes, Yes, sir. sir. ये हमको सम लग रहा है कि इजी सम है। ये पीछे भी ऐसे टाइप का सम फिर से पूछ लिया था, मैं देख रहा हूँ किधर पूछा गया था। आई थिंक सो इट वाज आस्क्ड इन 22nd क्वेश्चन, बराबर है क्या? ओके, हेलो, फाइन। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. और एक सम सेम रिपीट किया लास्ट टाइम की तरह इन्होंने, सेम। मैं आपको बता दूंगा, आपको याद आ जाएगा शायद सम को। इलास्टिसिटी वाला सम था, नहीं सर्कुलर मोशन में किया था। क्या किया था? स्प्रिंग मास सिस्टम वाज देयर, याद है? ऐसे स्प्रिंग था, उसको घुमाते थे हम लोग। अरे लास्ट टाइम ही किया था यार मैंने, ऐसे ऐसे घुमा रहे थे तो स्प्रिंग एक्सटेंड होती थी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. KX ये इसका, लेफ्ट साइड हाँ, में लगा. Yes, sir. Yes, sir. ये जब घुमाएंगे तो ये क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण Scientific x खींचा जाएगा, extend होगा. तो Yes, ये sir. हो जाएगा L प्लस एक्स। सो इधर सेंट्रीफ्यूगल, मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर बाद में क्वेश्चन पढ़ लेना। m ओमेगा स्क्वायर r, बट r is L प्लस एक्स, एंड हु इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? The kx ना। KX. Yes, sir. अब इन दोनों को क्या कर लो? Equate. इक्वेट कर, आंसर मिल जाएगा। गेटिंग इट? ये सम कर चुके हैं Yes, हम लोग sir. लास्ट टाइम। Yes, हेलो, sir. Yes, sir. वही सेम समय अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सी उन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया। अ स्प्रिंग मास सिस्टम ऑफ मास m एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के नेचुरल लेंथ l रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल डिस्क। मतलब यार इस चीज को हमने एक हॉरिजॉन्टल किस पे रख दिया बेटा? Sir, would it affect it like friction अरे or कुछ something? क्या फर्क पड़ता है यार, क्या फर्क, क्या Okay, okay, फर्क, okay. क्या पड़ता? नहीं है वो क्या फ्रिक्शन भी नहीं है उसका। Okay, यानी sir. फ्रिक्शन Okay. होता तो मैं लिख लेता, क्या प्रॉब्लम क्या है? फ्रिक्शन Yes, होता sir. तो Yes, किधर sir. आएगा? इधर ही तो आएगा फ्रिक्शन। अरे इंटेंशन ऑफ मोशन बाहर है तो फ्रिक्शन अंदर ही आएगा, बराबर है क्या? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई फ्रिक्शन। द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इफ द डिस्क इज टुगेदर रोटेटेड विद द स्प्रिंग सिस्टम, मतलब डिस्क को घुमा रहे हैं। हाँ, तो डिस्क को घुमाए कि स्प्रिंग को घुमाए, क्या फर्क क्या पड़ेगा? हेलो, Yes, sir. It will be one and the same thing. he is also providing say because it is on the same platform, बराबर है क्या? Yes, हेलो, sir. तो वही कह रहा है रिलेटिव चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ क्या चाहिए मेरे को? x मांगता है, सही है क्या? एक्सटेंशन मांगता है ना मेरे को। हेलो, 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 तो यहाँ पर क्या मैं लिखना चाहता हूँ, मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ? x is m omega square l plus x. Listen over here, what are they telling? So kx will become m omega square l plus m omega square x. लो, हेलो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो प्लीज, गेटिंग इट? तो x क्या हो जाएगा? k माइनस m omega square by m omega square l. So what will be x by l m omega square by k minus m omega square. This is called as relative change in length. अरे भाई दिस इज फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन लेंथ ना, फ्रैक्शन मांग रहा है ना। रिलेटिव मतलब क्या? रिलेटिव मतलब फ्रैक्शन होता है ना, हाउ मच इट इज चेंजिंग, मतलब कितना चेंज हुआ x बाय ओरिजिनल लेंथ। दे आर आस्किंग यू दिस, गेटिंग इट? हेलो, बिकॉज़ आंसर में l नहीं है ना। आंसर में l दिख रहा है क्या? हेलो, अरे समझा क्या? तो आगे बढ़ते हैं यार, यार ना फिर से इसे कहो। Yes, sir. Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? दिस वाज डन लास्ट टाइम, और वही क्वेश्चन घुमा के इन्होंने रिलेटिव चेंज इन लेंथ पूछा, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। या तो इनडायरेक्टली देखो, आप आस्क यू व्हाट, इलास्टिसिटी के जबान में क्या पूछेगा?
अरे change in length by or in the length. टेंसाइल स्ट्रेन ना, Yes, sir. Yes, sir. दिस कंफ्यूज थोड़ी करना है, सेम ही तो है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Sir, then which option will match? Sir? वर्चुअल मैच ना, डी मैच हो जाएगा। But नहीं मैच नहीं करेगा। no, sir. अरे क्या हो रहा है यार ये। Sir, they have हाँ, given अरे K is यहाँ पे much दिया हुआ है, bigger ओ than यार, M omega square. अरे दिया हुआ है ना यार, की Yeah, ये yeah. उड़ा Yes, sir, दो ना, yes, sir. ठीक है। थोड़ा सी सोचो ना यार, सब जेई में कर चुके हैं पहले हम लोग ने। Yeah, हेलो, yeah. So I had not read the full question. ठीक है, गेटिंग इट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वही टाइम पास वाला समय। अच्छा याद है मैंने एक शॉर्टकट बताया था जब, अच्छा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एटवुड्स मशीन? m1 minus m2 upon m1 plus n2 into g। हेलो हेलो, याद है ये? अरे व्हाट, हेलो, Yes, sir, yes, sir. Pulley ये system. मैंने कब बताया था? when the pulley is frictionless। Frictionless. पढ़ाई नहीं कर रहे हैं यार। अच्छा, पुली के साथ फ्रिक्शन विक्शन भी हो तो क्या करने का? तो फॉर्मूला बदल जाएगा, शॉर्टकट फॉर्मूला बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? इट विल बी m1 minus m2 upon m1 plus m2 into I by r square into g। हेलो हेलो, बोलो। अरे यार 2 साल पहले सिखाया मैंने, क्या कर रहे हो गया आंसर, खत्म हो गई बात। अच्छा, ये नहीं पूछा है, पूछा गया है हमको, पूछा गया है हमको। हेलो, ठीक है चलो पढ़ते हैं अभी। A uniform thick wheel has moment of inertia I and radius r is free to rotate. A massless string is wrapped over the rim and block of mass m1 and m2 such that m1 is greater than m2 is attached. The system is released from rest. The angular speed of the wheel m1 descends by a distance by h. So can I say when he falls by a height of h, I need the omega. I need the ओमेगा। हेलो, Omega. Yes, sir, yes, sir. अच्छा ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, मैं इससे भी कर सकता हूँ। हेलो, यू नो वी का फॉर्मूला क्या रहेगा? वी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या रहेगा? ये रहेगा। हेलो हेलो यार, ये जब एज गिरेगा नीचे तो ही विल अक्वायर वी ना। बोलो। Yeah, sir. ओके, तो वी स्क्वायर, यू तो 0 था, 2a, कहाँ से उठाने का? ए यहाँ से उठाने का, ये तो ये क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आई बाय आर स्क्वायर इंटू एच। ये v मिला। अच्छा v यहाँ से निकल के क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? अरे यार इसका रूट निकल जाएगा ना ये। हेलो, Yeah, under root will come. अच्छा व्हाट इज v इक्वल टू बट R r omega. omega, so you will get omega as v by r। हेलो, गेटिंग इट? गॉट Yes, इट? sir, yes, sir. Yeah. अगर ये मेथड आपको नहीं जमता है तो आप वही लगाओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मैं दूसरा मेथड से करूं? हेलो, अगर आपको ये याद नहीं है Sir, सपोज, आई can you डोंट, show both the methods? हाँ एक मिनट, बोथ द मेथड्स आई एम शोइंग इट टू यू, डोंट वरी, एक मिनट। हाँ, देखो दूसरा मेथड क्या था? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आर्यन हेलो, Yes, sir, yes, sir. इनिशियल Work काइनेटिक एनर्जी energy 0 theorem. है, mgh। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना रहेगा? हाफ m1 v स्क्वायर, दूसरे वाले का भी हाफ m2 v स्क्वायर, बिकॉज दे बोथ आर कनेक्टेड बाय द होल स्प्रिंग। एंड पुली का क्या रहेगा? हाफ आई ओमेगा Omega square. स्क्वायर, बट v इज आर ओमेगा। अरे Yes, यार sir. व्हाट यार, Yes, sir. Yes, Yes, sir, sir. yes, sir. बोलो। Yes, Yes, sir. sir, ये चला yes, गया sir. फिर से, नहीं क्या हो रहा है, किधर गया? व्हाट इज v? r ओमेगा ना। Yes, sir. And then like you. देन डू इट नॉर्मल सम, फिर पीछे वाला सम है। हेलो, Yes, sir, yes, sir, yes, sir. इसकी जगह r ओमेगा लिखना यार, करेंगे इट और नॉट? Yes, sir, समझ तो में. यहाँ से ओमेगा ढूंढ लो। ये तो मैंने शॉर्टकट कहा था, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है यार, ये तो फटक से आंसर है। हेलो, ये Yes, Yes, sir. sir, yes, sir. ये ठीक है।
नहीं आता है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल मेथड से हम लोग कर सकते हैं। हेलो, गेटिंग इट? Yes, यार sir. अटेंड किया करो, कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, कुछ ना कुछ सम्स तो सीखने मिलेंगे। ओके, मैं तो कहता हूँ नीट वाले भी अटेंड करो, कुछ ना कुछ सम सीखने मिलेगा आपको। सब नहीं आएगा, सपोज आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, कुछ लोगों को सब भी समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 32 पर आता है अभी, ये देखो ग्रेविटेशन के सम्स आ गए इधर। ओके, और इतना ब्यूटीफुली उन्होंने कवर किया है वो 7 पेपर के अंदर, 7-8 पेपर के अंदर इतना ब्यूटीफुली सब कॉन्सेप्ट्स कवर किया है, ताकि ऐसे नहीं है कि सब कुछ सॉल्व कर दो यार। 16-17 पेपर सॉल्व करो, आपको सब टाइप्स मिल जाएंगे। A box weighs 196 Newton on a spring balance on the North Pole. ठीक है, it weights is recorded or the same balance is shifted to the equator. एक मालूम है क्या, what is the G का फर्क on the equator and the pole? हेलो, G G in the pole poles is more. कितना मोर Uh, याद है? हेलो, yes, sir. Yes, sir. sorry I have written wrong. G equator is G pole minus this ना। Yeah. हेलो, कितना फर्क है, कितना फर्क है? R omega square. R ओमेगा स्क्वायर का फर्क है, सही है क्या? Yes, हेलो, sir. R ओमेगा Yes, sir. स्क्वायर का Yes, फर्क sir. है। कैन फाइन, ये चीज तो सब ठीक है। अब कैन आई मल्टीप्लाई बाय m, कैन आई मल्टीप्लाई बाय m थ्रू आउट, तो mg इक्वेटर will become mg pole minus mr omega square. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. this is weight at equator, Weight at this is equator. weight This at is weight pole at pole. minus mr omega square, सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, how much is the weight at equator पता ही नहीं है, क्या We पूछ have रहा to है? find Find what is weight at pole. 196. 196 Newton. वेरी गुड, what is the mass? 196 by 10 हो Wha- जाएगा ना बेटा। Yes, sir. अरे जी का वैल्यू 10 लेने बोला है, Yes, sir. देखो ना। Yes, sir. आर कितना है? 6400। ए भाई, Yes, Yes, sir. sir. Radius of 2 the pi by Earth. t, that And is 86,400 double square. So, हाँ. ये वेट है इक्वेटर आपको दिखा देगा। या तो एक काम करो, आप घर पे जाओ, आर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके याद कर लो सीधा। हेलो, आर ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट ही रहेगा ना, चेंज थोड़ी होगा। हेलो, Yes, sir. yes, sir. अरे भाई ये चीज है ना, ये कांस्टेंट है, इसको कैलकुलेट, आई थिंक इट इज 0.37 या कुछ है। So you had given it मैं during दिया था अभी, gravitation. I don't remember. आई Yeah. डोंट, देख लो ना I'll बुक have में, to देख लो, check. Yeah. दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट। So तो the आपको सीधा, 86400 is the mass, right, of the Earth? अरे time. अरे Oh, 24, sorry, sorry. 2 by 2 pi t. by Yes, t. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सही है क्या? नीट Yes, वालों sir. को भी Yes, काम sir. लगेगा बेटा, आर ओमेगा स्क्वायर याद कर लो। आई थिंक इट इज 0.036, मुझे याद नहीं आ रहा है यार, आप लोग देख लेना, ठीक है? हेलो, नाउ दिस Yes, वाज अ sir. मैनेजेबल क्वेश्चन, वेरी इजी एंड मैनेजेबल क्वेश्चन, बराबर है क्या? खाली कैलकुलेशन लंबा था इसमें, मगर अगर आपने आर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू सीधा याद कर लिया तो भी आपको 1 मिनट से कम में आंसर आ जाएगा। हेलो, करेंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. तो टेंशन नहीं है बेटा। 33 पर आता है, 33 कंसिडर 2 सॉलिड So it's स्फीयर, 0.3. 0.37 है, Yeah. 0.36 है, 3. एक हाँ. 0.36 या 0.37 है। हेलो, Yeah, sir. बराबर से थोड़ा वो कर लो, याद कर लो, 0.3 तो है ही, बट उसमें फर्क है ना 9.8 से। हेलो, हाँ. So कंसिडर we 2 take सॉलिड, 9.8 के 10. नहीं वो तो 9.8 है ना रियल वैल्यू, इधर क्वेश्चन में हाँ 10 हाँ दिया है हाँ. ना। हेलो, कंसिडर कंसिडर देखो यार, इधर देखो। ओके, ये हाँ ग्राफ हाँ. आपको याद है बेटा, ये ग्राफ आपको याद है? ये भाई ग्रेविटेशन में दिस वाज बड़ो आर, hey, this is intensity and this intensity on the surface becomes gm by r square. हेलो हेलो, याद है? अरे ग्रेविटी सेम एज इंटेंसिटी ना, ग्रेविटेशन जी, याद आ रहा है क्या? ऑन द सरफेस। On the हेलो, surface, yes, sir. And then out. दो Yes, ग्राफ दिए yes, sir. हुए हैं, कैन आई से एट r इक्वल टू 1 gm by r square is 2? क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, बोलो ना। और दूसरे ग्राफ में कितना है gm by r square? 3 है, 3, एट r इक्वल टू 2, सही है क्या? 2. Yes, sir. तो m1 m2 मांगता है, अरे खुद दम नहीं है। gm1 by r1 square is 2,
What is second graph में g m2 G by M2 by r2 square is 3. 3. दोनों को डिवाइड मार देंगे तो m1 upon m2 into reciprocal is r2 by r1 the whole square is what 2 by 3. हेलो डिवाइड मार दिया दोनों को यार. हेलो Yes sir, yes sir. m1 तो में m2 4 by पता 1. नहीं है, हो गया r2 by r1, r2 by r1 is 2 by 1, that is 4. 4 by 1. 2 by 3 है, 2 2s are 4, 1 by 6, yes or no sir? हेलो Yes sir, हेलो. yes sir, yes sir. अब यार ये आना चाहिए था, इसके बिना काम नहीं होगा. हेलो Yes sir. ये इसको रेप्लिकेट करना है ना इधर पे. गेटिंग इट और नॉट? Yes sir. ओके. हमने जो 2 साल किया ना उसी में से पूछ रहा है, कोई भी सम बाहर से नहीं आया. ओके अभी तक जितना मैंने देखा है ना 2020 में कोई भी सम बाहर से इन्होंने दिया नहीं है. ओके बीच में शायद बीच में आ जाए, आई डोंट नो, बट अभी तक जितना मैंने देखा है सब वी हैव डन द सम्स. अब ये देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है सम का, बहुत अच्छा सम है. टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था. ओके अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता रहे तो वी विल रिकमेंड दैट यू लीव द क्वेश्चन. हेलो हेलो यार Yes sir, yes sir. सुनाई में आ रहा है बात? हम लोग Yeah, 2-4 सम करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है सम. 35 तक भी एटलीस्ट करेंगे तो समझ में आ जाएगा. 34 एंड 35 आर डिट्टो सेम. ओके देखते हैं हम लोग. अ सैटेलाइट ऑफ मास m is launched vertically from initial speed u from the surface of the earth. इधर ध्यान दो. हेलो हेलो. yes sir, yes sir. 34 and 35 are very much similar. I am not doing 35 same है, but 34 and 35 एकदम same sum है. A satellite of mass m is launched from a vertically upward with initial speed u. कितना स्पीड दे रहे हैं हम लोग इसको? कितना दे रहे हैं बेटा यार बोलो ना. u का स्पीड दे रहे हैं from the surface of the earth. It reaches a height equal to r. ध्यान देना बहुत अच्छा सम है. 1-2 सम और it reaches a height कितना कितना हाइट? R. चलो मेरी बात सुनो, एक काम करता हूँ मैं. कैन आई से टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल. जब भी कोई चीज ऊपर जाती है मैं ऐसे ही करता हूँ ना. Yes sir, yes Ke sir. प्लस पीई इनिशियल इज इक्वल टू के प्लस K पी plus फाइनल. याद है ये तो प्रैक्टिस कर Yes करके sir. वी हैव गॉन मैड. काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना है? हाफ एम यू स्क्वायर है. पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज माइनस जी एम एम बाय बड़ो Minus आर. GM by. Yes. काइनेटिक एनर्जी फाइनल आई डोंट नो इट इज हाफ एम वी स्क्वायर. जब यहाँ पर आया ये सैटेलाइट तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया? v हो गया. सही है क्या? Yes sir. ओके और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई इसकी? माइनस जी एम एम बाई 2r बिकॉज इट 2r, इज एट yes द sir. डिस्टेंस ऑफ r प्लस h फ्रॉम द अर्थ सरफेस. यस और नो सर? हेलो Yes sir, yes Yes sir. sir. यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको v का वैल्यू आएगा अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर. ये हमने कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट करके हमने रख दिया. गेटिंग इट और नॉट? ये उसका v Yes का sir, वैल्यू yes sir. मिलेगा. ठीक है ये v का वैल्यू मिलेगा. अब सुनो. हाँ अब आगे कहानी सुनो सब लोग. हाँ आफ्टर रीचिंग द हाइट r इट इजेक्ट्स अ रॉकेट. इसने इस सैटेलाइट ने एक रॉकेट छोड़ा. कितने मास का? कितने मास का बेटा? M By by 10. 10. 10/10. मतलब इसके मास में से m/10 बाहर निकल गया तो बचा कितना? 9m/10. 9 M by 10. Yes sir. So that subsequently the satellite moves in circular orbit. उसने रॉकेट ऐसे डायरेक्शन में छोड़ा ताकि वो गोल गोल घूमने लगे और along the surface of the earth, around the surface of the earth. Getting it or not? हेलो. Yes sir. तो उसने रॉकेट ऐसे डायरेक्शन में छोड़ा ताकि वो घूमने लगे. अच्छा रॉकेट छोड़ने का क्या मतलब है? रॉकेट छोड़ने का ये मतलब है कि ही वांट्स टू कंजर्व मोमेंटम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. हेलो ही वांट्स मोमेंटम इन द ही वांट्स टू रिकॉइल. बराबर है क्या? हेलो Yes, yes sir, yes sir. अरे भाई अगर आगे आप फेंकेंगे ना स्पेस में तो आप पीछे जाएंगे ना. Yes sir, yes sir, मूवी yes देखा है sir. कि नहीं? तो कोई बता सकता है कि कौन से डायरेक्शन में उसको रॉकेट को छोड़ना है? हेलो सपोज मुझे इधर जाना है. If he wants to go to the left, then towards the right it will have to leave, no? So but on an angle, right? Why do you say so? Why do you say so?
इधर देखो, अभी मेरी बात सुनो। सपोज उसको इधर जाना है, दिस इज हिज वी रॉकेट, बराबर है। So angle because that V up पे है ना, हाँ, दिस इज द वी, सॉरी वी रॉकेट नहीं, ये वी सैटेलाइट है, V बराबर है क्या? satellite, या राजीव की बात राइट है सर। कौन से एंगल पर हम छोड़ेंगे? कैन आई से ये एंगल पर अगर मैंने रॉकेट को हिट किया, राइट, यस सर, तो वो लेफ्ट, यस। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सर अभी मेरी बात सुनो। तो V rocket will एक be मिनट, towards, मैं समझाता हूँ बेटा, मैं समझाता हूँ, वेट वेट प्लीज। yes sir, हेलो, yeah sir, कैन आई से ये रॉकेट के दो टुकड़े करते हैं, कैन आई से ये वी एक्स आएगा और ये वी वाई आएगा। भाई आएगा, कैन आई से ये वी एक्स इसको रिकॉइल करेगा सैटेलाइट को इस डायरेक्शन में। हेलो, लेफ्ट, यस सर, लेफ्ट है, अरे भाई ये जो वी एक्स है इसके कारण ये बनेगा ना। हेलो, यस सर, यस सर, एंड ये वी रॉकेट का जो वी वाई है ना, उसके कारण ये पीछे धकेला नीचे जाएगा जाएगा, ताकि ये वी को कैंसिल कर पाए। यस सर, हेलो, यस सर, यस सर, ये वी वाई के कारण ये मोमेंटम एक पीछे जनरेट होगा जिसके कारण ये इसको कैंसिल कर देगा। हेलो, yes sir, यस yes sir, सर, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, कुछ समझ में yeah आ रहा है yeah बहुत। sir, Yes, सब sir, but then yes, sir, mass yes, भी sir. कम लेना पड़ेगा ना। हाँ वो सब हम देखेंगे, वो Oh. कैलकुलेशन में देखेंगे हम लोग, वो कोई इश्यू नहीं है बेटा। हाँ yes बट sir, वो बैलेंस हो जाएगा एनालिटिकली। आपको मेथड समझ में आया क्या क्या हो रहा है? yes sir, समझ Yes, गया sir. सर। हाँ, अब आई विल कंजर्व मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। मतलब उन्होंने क्या घुसेड़ दिया बीच में, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन Law ऑफ of लीनियर conservation मोमेंटम of अलोंग momentum, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, बराबर है क्या? yes sir, हेलो, yes sir, यस और नो? कैन आई से yeah इन yeah Yes, वाई, sir. इन वाई डायरेक्शन initial momentum is final momentum? Can anyone tell me in the y direction how much was the initial momentum of the rocket? mv? अरे इनिशियली वो तो mv से जा रहा था ना ऊपर, येलो कलर। हेलो, Yes, sir. yes sir, yes sir, getting it or not? Yes, sir. Yes, sir. and finally रॉकेट को रुक जाना है वर्टिकल डायरेक्शन में, उसको तो एक्स डायरेक्शन में जाना है ना। हेलो, Yep. और रॉकेट कौन से डायरेक्शन में जाएगा? कैन आई से रॉकेट का जो मोमेंटम रहेगा वो रहेगा m/10 into vy। V. So VX, no? vy भाई, y डायरेक्शन की बात हो रही है, vx Oh, कहाँ? okay, okay. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. initially rocket was having mv, बराबर। हेलो, ये इनिशियल केस Yes, था। sir. yes sir, फाइनली रॉकेट तो ये डायरेक्शन में रुक गया ना भाई। हेलो, कौन जा रहा है ऊपर सिर्फ? m/10 into vy, yes or no? हेलो, दिस इज द फाइनल Yes, केस। sir. yes or no, yes or no, yes Yes, or no? sir. Yes, sir. और ये 9m/10 हो जाएगा, सही है क्या? हेलो, क्या बोल रहा हूँ यार मैं? हेलो Yes, sir. यार, एक दो सम बीच में आ जाएगी ना, तुम लोग ऑल इंडिया एग्जाम दे रहे हो यार, और ये भी कुछ हार्ड नहीं है। एक्स डायरेक्शन में क्या कंजर्व करना है, जल्दी बोलो, एक्स डायरेक्शन में क्या करेंगे? P initial is equal to Initial 2 pi. zero. P initial 0 था, बराबर है। Yes, इनिशियली sir. तो कोई था ही नहीं, P initial 0 है। फाइनली के बारे में क्या बात है? कैन आई से m/10 vx minus 9m/10 v सैटेलाइट। हेलो 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 हेलो, yes or no? yes sir, yes sir, Getting it? That means m/10 vx is equal to 9m/10 v satellite. Hello, yeah yeah sir, 10. Getting it? So what is vx equal to? 9 times V satellite, 9 times of v satellite. अच्छा, v satellite दिया हुआ है क्वेश्चन में, v satellite कितना दिया हुआ है? कैन आई से जब वो घूमता रहेगा तो इट विल गो विद अ क्रिटिकल वेलोसिटी। अरे भाई, यस और Yes, नो? sir. Yes, yeah yes, sir. yeah Yes, sir, sir. व्हाट इज फॉर्मूले फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी? मतलब अंदर सम के अंदर सम के अंदर सम, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या? अंडर रूट जीएम बाई छोटो आर। ए क्या है, और छोटो आर इज 2r। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या Yes, हो रहा sir. है, क्या हो रहा है? थक गए तुम लोग? हेलो, यस और yeah नो? yeah sir, Yes, कितना yes, sir. concept, हाँ तो है, तो है, एक समय नहीं yeah आता है तो yes छोड़ sir, देने का yes इसको। sir, अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग?
Yeah, it's Yes, quite sir. lengthy also. हाँ, इट इज लेंथी ऑल्सो, बट आ गया तो सबके लिए हार्ड है भाई. अगर आपने क्रैक कर लिया तो अच्छा है. गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. भाई Yes, सम sir. Yes, sir. खत्म नहीं Yes, हुआ sir. है, सम खत्म नहीं हुआ है, सम खत्म नहीं हुआ है. कैन भी आई से रॉकेट चाहिए. एक मिनट कैन आई से ये यहाँ से क्या मैं वी वाई निकाल सकता हूँ? ये एम उड़ा दो. Oh, कैन आई से वी वाई कितना हो जाएगा? 10V. 10v. अच्छा, v मैंने यहाँ से फाइंड किया, Yes, देख ले. sir. तो वी वाई कितना मिला? 10 टाइम्स 10 ऑफ times under root रूट of. ऑफ यू स्क्वायर माइनस जी एम बाय आर. बोलो भैया. Yes, sir. Yes, sir. अब ये पीपीटी भी बोल रहा है भाई आई विल नॉट वर्क. गेटिंग इट? अब ये चीज मिल गई वीएक्स और वी वाई. कैन आई से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉकेट इज हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. दोनों वर्टिकल है, ये दोनों क्या पैरेललोग्राम लगाया मैंने. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. और फिर Yes, जो sir. आंसर आया वो आपका आंसर रहेगा. गेटिंग इट और नॉट? Sir, but practically, if you go to see the mass of the satellite should be less than the mass of the rocket, right? भाई जो दिया है उसके हिसाब से मैंने सॉल्व किया. गेटिंग इट? Okay, okay. Yes, sir. Yes, सर sir. बट उसको ओवरकम करने के लिए रॉकेट ज्यादा स्पीड से जाएगा तो देन ओवरकम हो जाएगा ना. यस यस. अरे बुलेट एंड गन का एग्जांपल लो ना यार आप. Yeah, क्या sir. फर्क पड़ता है? गेटिंग इट? ओके. So good question, like मतलब quite गुड hypothetical. क्वेश्चन. दिस इज जनरली क्वेश्चन ऑफ एडवांस्ड. Yeah, sir. दिस इज जनरल क्वेश्चन ऑफ एडवांस्ड. अभी अगर एक्चुअल आप पेपर में like 5-6 minutes तो निकल जाएगा. ज्यादा टाइम, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर है, खटा खटा खट करके आ रहा है सब आपको, पहले एक्चुअली क्या है मालूम है? एक्चुअली ये सम पहले देखा हुआ होना चाहिए. हेलो. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, तब sir. आप Till उधर you सोचने strike with a diagram. आप उधर सोचने बैठेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है. गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अगर sir. आपको नहीं समझ में आता है तो जस्ट लीव इट, यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड फिनिश इट ऑफ. एक समझाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. गेटिंग इट? Yes, हेलो. sir. Yes, sir. बट कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट आई थिंक पूरा ग्रेविटेशन सैटेलाइट मोशन आपका रिवीजन हो गया. हाँ गेटिंग इट? सर, आपने बोला ना इजी चैप्टर टफ क्वेश्चन, वही हो 30 गया. 30 हाँ, सैटेलाइट में ऐसा ही होता है. आपने आगे भी देखा है. और एक सम कर लेते हैं हम लोग सैटेलाइट का, तो आपको समझ में आएगा. फिर वी कैन स्टार्ट इलास्टिसिटी. 35 वाला अटेम्प्ट करना अभी जाके घर पे. हेलो, इसको छोड़ मत देना. एक एक सम अटेम्प्ट करना है. प्लीज डू दिस. हाँ, हेलो. ओके. एस्ट्रॉइड वाला सम है, वही सम है, वही टाइप का सम है. प्लीज इसको अटेम्प्ट कर लेना घर पे जाके. आई हैव सेंड यू द पीपीटी ऑल्सो. हेलो. तो अरे भेजा है ना मैंने पीपीटी व्हाट्सएप पे. हेलो यार बोलो. हाँ हाँ सर. ठीक है. आई एम अटेम्प्टिंग द 36th क्वेश्चन एंड we'll start from 38 लास्ट टाइम. तो एक दो सम जो मैंने लीव किया है वो आप लोग कर लेना. ग्रेविटेशन के. A body A of mass m is moving in a circular orbit. Is moving in which orbit बेटा? बोलो बोलो जल्दी बोलो यार, कुछ हेल्प करो. सर्कुलर ऑर्बिट. कितना क्रिटिकल वेलोसिटी से जाता रहेगा ये? अंडर रूट gm by r, because radius is r ना of the orbit. दिया हुआ है देखो भाई. हेलो, स्क्रीन चला गया क्या? यस और नो? हेलो. सर द स्क्रीन शेयर स्टॉप. हाँ, एक मिनट. आ गया भैया. इधर देखो. गेटिंग इट? Yes, sir. ओके. अब क्या कह रहा है ये? अनदर बॉडी बी. तो ये तो बॉडी ए है, बॉडी ए. अनदर बॉडी बी ऑफ मास m/2, इसका मास m है, ये मास m है, m/2 collides with a velocity which is half of v/2. ओके. ये आके इससे कोलाइड कर दिया. हेलो. गेटिंग इट? The instantaneous velocity, the collision is completely inelastic. तो ये आया इधर से और इससे कोलाइड कर दिया. सपोज इधर से ही आ रहा है सेम डायरेक्शन में, बिकॉज वी बार यूज कर रहा है ना. अगर वी बार मतलब डायरेक्शन उसका भी सेम है. हेलो. गेटिंग इट? अरे भाई, गेटिंग इट और नॉट? हेलो. यस सर. यस सर. मतलब ए अगर ऐसे था ना, वी नॉट से जा रहा था एंड सर्कल में जा रहा था, तो बी आया पीछे से. इसका मास है, इसका मास कितना है? m/2. एंड कितना वेलोसिटी है इसका? v0/2. हेलो. हेलो यार, कोलाइड Yes, करके sir. दोनों Yes, sir. चिपक गए. क्योंकि चिपक कैसे गए? क्योंकि वर्ड इज Inelastic. inelastic है. तो कैन आई से द रिजल्टेंट मास बिकम्स, 3m/2. M. एंड कैन आई से इट गोज विद v डैश? Yes, sir. क्लियर है ना?
चलो Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इनिशियल मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम. मजा आएगा, सब लोग इधर ध्यान दो, मजा आएगा, सब लोग इधर देखो. कैन आई से इनिशियल मोमेंटम कितना है? m v नॉट प्लस m by 2 Uh, v नॉट by 2 will become 3m by 2 into v dash. हेलो, yes, sir. अब ये क्या है? m Into हाँ. m उड़ा दे. तो कितना हो गया ये देखना, v नॉट प्लस v नॉट by 4 कितना होता है? 5 v नॉट by 4. हेलो, 3 by 2 v dash, 2 2s are 4, तो कितना हो गया ये? 5 v नॉट by 6. 6 v dash. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो है, अच्छा ये नंबर जो है वो v नॉट से कम है कि v नॉट से ज्यादा है? हेलो, Sir. V not से कम है. v नॉट से कम है, बराबर है. Yes, sir. हेलो, अब Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब मुझे 4 आंसर है मेरे पास. क्या बोल रहा है? पहला आंसर क्या बोला है? स्टार्ट्स मूविंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट. सेकंड बोला है स्टार्ट्स मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट, फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, एस्केप फ्रॉम द इन्फ्लुएंस. एस्केप तो कभी भी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एस्केप के लिए √2 टाइम v नॉट होना मांगता है. सही है क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हेलो, फॉल्स Yes, sir. वर्टिकली डाउन कब होगा? जब वो रुक जाएगा, रुक जाएगा. Yes, sir. बराबर है. Okay. ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है. कंटिन्यूज टू मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट के लिए v नॉट जरूरी है. V आंसर naught. यही Yes, बनेगा sir. ना. हेलो Elliptical ना, हेलो, sir. यस और नो, गेटिंग Yes, इट sir. और Yes, नॉट? sir. Sir, it will start moving closer and closer to the Earth, and if planet. it Huh? enters the Earth's atmosphere according to the Atmosphere. theory, Yeah, it will fall down to the Earth's surface. ये पढ़ा चुके हैं हम लोग थियरी में. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अरे भाई बोलो ना, कुछ कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए ना पेपर सॉल्व करने के बाद में. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो. ओके, लास्ट सम भी कर लेते हैं यार, ग्रेविटेशन का लास्ट सम. नेक्स्ट टाइम आई स्टार्ट विद इलास्टिसिटी. हां, देन हेलो. So, sir, here there weren't any sums of 2 stars. So, is that important? बाइनरी स्टार जनरली एडवांस में पूछा जाता है. हेलो, Okay. Okay. बाइनरी स्टार एडवांस्ड में पूछा जाता है. So, can you revise that once afterwards during advance? कैन यू रिवाइज? Can you revise that binary star वाला हाँ once? हाँ, अरे कर लेंगे भाई. Yes, स्टार sir. हो जाएगा. वो जब आएगा ना, सब में आएगा तो ही आ जाएगा, वो कोई बड़ी बात Yes, नहीं. sir. चलो Yes, sir. यार, इधर देखो लो फटाफट. Planet A has mass m and radius r. Planet B has half the mass and radius r. If the escape velocity is, इसमें ये कोई सम है क्या यार? escape velocity का जनरल फॉर्मूला क्या है? √2 gm by r. Yes, sir. तो escape velocity 1 upon escape velocity 2 will be √ of m1 by m2 into r2 by r1. R1. हेलो, मिल जाएगा ना? Yes, सबको sir. मालूम है. हेलो Yes, हेलो, sir. Yes, sir. Yes, sir. यार आंसर आपको मिल जाएगा. गेटिंग इट और नॉट? तो यहाँ पर आंसर आपको आएगा 1/4. तो आपको पूछा है n/4 कितना है? n is 1 ना. देन हेलो, Yes, sir. this is how you do. Next time I'll be solving elasticity, fluid static, fluid dynamics, surface tension, thermal expansion, calorimetry and laws of thermodynamics देखते हैं. एटलीस्ट हो जाएगा तो अच्छी बात है. ठीक है, चलो. Sir, हाँ भाई. sir, from Ray, this optics, I have a doubt, sir. So you had said that live class किया था तभी कि 1/u versus 1/v का ग्राफ आपने like recorded में discuss किया, but so you haven't done it. I have done it in the video यार. क्या बात No, कर no, रहे no, sir. So the recording is not done, but there are examples in the DC one. Yeah. 1/u and 1/v. हो? 1/v and 1/u जो होता है, इसका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन ही होता है ना भाई. Yes, sir. ऐसे ही आएगा. Yeah. Aryan, you call me up if you don't get. Call me up tomorrow. I'll explain. कोई Okay, easy है sir. एकदम. So I'll go through again and then like I'll get back सॉल्व to you. एग्जांपल है, लास्ट पेज है. लास्ट पेज. Okay, sir. रे ऑप्टिक्स के ग्राफिकल सेक्शन का लास्ट पेज है. ठीक है, गो I'll थ्रू go इट. through and then I'll get back to you. थैंक यू. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you.